start. So friends, as you all know, all of us have been concerned with the manner in which different kinds of responses have emerged after the statement made by the Army Chief General Rawat. What is a matter of concern, worrisome, and also appalling is that Congress party is falling into the temptation of politicizing what has been said by the Army Chief. It is our considered belief and our conviction the nation is indebted internally to the Indian Army, the paramilitary forces. We are safe today. We are able to carry on our routine, our activities, the manner in which we wish, because we are being safely guarded by our security forces, which are among the best in the world. We are proud of them. We sleep because they stay awake. We eat because they stay hungry. And therefore, it is almost a sacrilege or a sin to say or do anything which tends to belittle the contribution of Indian security forces or tends to lower the morale of the forces. I think regardless of our political affiliations, regardless of political ideologies, it is important for each one of us to understand that politicking in the name of the security forces is ultimately going to affect each one of us regardless of our political beliefs, and therefore I think it is high time the nation should be made aware of the kind of lowly politicking indulged to by some of the Congress leaders who have questioned not only the intention of the Army Chief's statement, but also gone to the extent of him hot-headed. And the statements which have come one after the other by a number of leaders, whether it was Mr. Ghulam Nabi Azad or Mr. Sandeep Dikshit or Ranjita Ranjan, are quite unbecoming of a national party. But over a period of time, it has been established time and again that this party can go to any extent with an eye on electoral gains. And we saw this happening very recently at the time of the surgical strike, when questions were raised on the credibility of surgical strike, which is something which never happens even in the most developed democracies of the world, most advanced democracies of the world, which also observe certain bottom lines. And therefore, was actually inspired by concern for the youth of Kashmir. During counter-militancy operations, which are carried out jointly by the Indian Army, the Rashtriya Rifles, even by the Jammu Kashmir Police, I think nobody is more concerned than the army personnel about the possibility of a collateral damage and to avoid a collateral damage happening. And therefore, the Army Chief had made an earnest appeal that whenever an operation like this is in the process, the youth should avoid coming in the firing line so that they could be spared of any. Unfortunately, some of the Congress leaders have started interpreting it as if the army is on run after the youth of Kashmir, which is far from true. All of us have a stake in the youth of Kashmir. We know the population of Kashmir comprises nearly 60% of youth, and it is the youth who have now come of age. They have come to realize the manner in which they were misguided by some of the separatist and semi-separatist forces, and they want to be a part of the mainstream development being led under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. There has also been statements by some of the regional Kashmir-centric political parties who have not only gone to the extent of saying unsavory things about the army, but also questioned the wisdom of the Army Chief
in having made that statement. Virtually, that is a semi-separatist or a separatist jargon which is resorted to by certain Kashmir-centric political parties the moment they are out of power. These are the same political parties, for example, like National Conference, which is talking like this, which as a part of UPA was the one which even went to the extent of demanding bombardment on the terror camps in Pakistan. But the moment when they are in power, they swear by India, they swear by Kashmir being an integral part of India. At the moment they are shunted out of power, they overnight become wiser and tend to question the role of army, the status of Kashmir. And therefore, it is for all of us to realize this bluff, and particularly in the context of the sensitive situation that the country is going through, it is important for all of us to realize the kind of politicking which Congress party has resorted to time and again in the recent past and even on this occasion. As far as the separatist lobby in the Kashmir is concerned, we have always held the view that this is more of separatism by convenience rather than conviction. They make best use of all the perks, privileges available through the Constitution of India, but at the same time publicly claim to be not subscribing to the same Constitution. And unfortunately, the Congress party, notwithstanding its apparent claims of being a national party, is also falling to the temptation of using the same separatist or semi-separatist jargon for some petty short-term electoral gains, which also may elude it in the times to come. मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सेना अध्यक्ष जनरल रावत के बयान के उपरांत जिस प्रकार से एक के बाद एक बयानबाजी आरंभ हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंता का कारण भी है। और चिंता केवल सरकार और किसी राजनीतिक दल विशेष की नहीं, सारे समाज की है कि यदि हम सेना की आड़ लेकर के राजनीति करने का प्रयास करते हैं थोड़े बहुत इलेक्टरल फायदे के लिए, तो भला किस प्रकार के प्रजातंत्र के मूल्यों का ये पालन हो रहा है। विश्व के सबसे अधिक विकसित प्रजातांत्रिक राष्ट्र भी कहीं ना कहीं किसी बॉटम लाइन की पालन करते हैं, परंतु यहाँ कांग्रेस के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सेना के द्वारा कार्रवाई हो रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, और सेना के अध्यक्ष जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देश और राष्ट्र ऋणी है भारतीय सेना का, भारत के अर्धसेना बलों का, और ये ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि आज हम सुरक्षित हैं, हम अपनी दिनचर्या अपनी इच्छा अनुसार निभाने में सफल हैं, तो मात्र इसलिए कि देश की सेना के जवान दिन रात सेनापति बन करके हमारी सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए हैं। हम जब सोते हैं वो जागते हैं, हम जब भरपेट भोजन करते हैं वो खाली पेट रहते हैं, और इसलिए इस प्रकार की बात कहना निंदनीय ही नहीं, एक पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। और ये एक निहायत के अध्यक्ष को ये चिंता रहती है कि मासूम लोगों का नुकसान ना हो, और इसलिए भरे मन से एक अपील है कि हमें चिंता है कि आप लाइन ऑफ फायरिंग में ना आए ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से दर्शा रही है कि मानो सेना भाग रही है युवाओं के पीछे, जैसे मानो देश के युवाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार और शोषण और दमन आरंभ हो गया है सेना की ओर से। और एक बार नहीं, बार बार ऐसा कहना। अभी हाल ही में जब सर्जिकल स्ट्राइक का समय आया तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया गया, और विश्व के बड़े से बड़े विकसित देश और बड़े से बड़े विकसित प्रजातंत्र में भी इस तरह की राजनीति और घिनौनी राजनीति की आड़ लेकर के अपने चुनावी एजेंडे को बढ़ाने का कार्य नहीं किया जाता। और इसलिए समय आ गया है कि देश की जनता और कुछ एक
अलगाववादी दल जो समय समय पर इस तरह की बातें करते हैं कश्मीर के, हमारा सदा ये मानना है कि वो अलगाववाद करते हैं तो किसी आदर्श आइडियल के तहत नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय संविधान से उपलब्ध हर प्रकार के प्रावधान का पूरा लाभ भी उठाते हैं और साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि भारत के संविधान में उन्हें विश्वास। लेकिन उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है, एक सस्ती राजनीति करने की खातिर अलगाववादियों की भाषा का उपयोग करने पर मजबूर हो गई है। इससे यह भी जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार हताश हो चुकी है और वह आने वाले समय में अपना किस प्रकार से बोझल और ओझल देख रही है। और इस फ्रस्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी इस कदर विवश हो चुकी है कि वो अलगाववादियों की भाषा बोलने पर मजबूर हो चुकी है। निश्चय ही, जैसे आपने ठीक कहा और आपने देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें भारतीय सेना भी होती है, राष्ट्रीय राइफल भी होती है, प्रदेश जम्मू कश्मीर की पुलिस भी होती है। और एडवाइजरी भी एक चिंता के ही से प्रेरित है। तो मैं समझता हूं कि हम सबको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारी सेना और हमारी पुलिस कितनी संवेदनशील है। उन्हें ये चिंता है कि किसी युवा की, किसी मासूम व्यक्ति की जान जाया ना जाए, और इस बात को चिंता ना समझ करके चुनौती की संज्ञा देना एक राजनीतिक बैंकरप्सी को दर्शाता है। I said most of these counter-militancy operations are taken jointly by the Indian Army, the Rashtriya Rifles, the Jammu Kashmir Police, and therefore in fitness of things, an advisory has been held out, and I think it was described in quite some detail by the Director General of Jammu Kashmir Police. This is in fact a reflection of the kind of sensitivity with which the Indian security forces, be it the Indian Army or the Jammu Kashmir Police or the Rashtriya Rifles, are operating in the most difficult situations. Unfortunately, some of the parties like Congress Party are taking it as a chetavani, but this is not a chetavani, this is a chinta. This is a reflection of the extreme and high degree of sensitivity with which the security forces are operating with extreme and absolute care to ensure that none of the innocent lives are lost during the counter-militancy operation. And therefore, this is a humble and a very fervent appeal to the youth not to risk their lives when an operation like this is in the process. निश्चय ही जहाँ जहाँ भी सरकार के संज्ञान में आता है इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इन सब चीज़ों का कई बार सार्वजनिक तौर पर व्याख्यान नहीं होता, परंतु इससे भी अधिक संतोषजनक बात यह है कि कश्मीर के आम इंसान, कश्मीर का आम युवा, कश्मीर की गली सड़कों पर चलने वाला व्यक्ति अब इस हकीकत और इस वास्तविकता को समझने लग गया है। अब वो और अधिक गुमराह होने के लिए तैयार नहीं। इस विषय में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। कारण ये कि प्रदेश इकाई और प्रदेश का नेतृत्व इसका स्पष्टीकरण दे चुका है। ये जो भी नाम दिए गए हैं इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ना है ना रहा है। ये एक दुष्प्रचार। बिल्कुल, तो फोटो जारी करने से तो कोई हर्ज नहीं पड़ता। मेरे साथ आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे फोटो हैं जैसे जिनमें हमारे साथ कांग्रेस के वॉलंटियर खड़े हैं। तो ये जो कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इनके बहुत से चित्र हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो ये क्या भाजपा के सदस्य हो गए? सार्वजनिक जीवन पर मंच पर खड़े होना या किसी चित्र में दिखाई देना कोई प्रमाण नहीं रहता। बल्कि यदि कांग्रेस के
कोई सदस्य हमारे साथ आकर के चित्र खिंचवाना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है कि शायद वो हमारे से इतने प्रभावित और प्रेरित हैं। वो अपना ही रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। पिछले 70 वर्ष में 68 वर्ष लगभग केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही है, जिसमें स्वयं इनका भी मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा। और प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्तमान इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन अमरनाथ का उस समय हुआ जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। निश्चय ही सरकार इन सब बातों का संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करती है। हर चीज़ का व्याख्यान, जैसे मैंने कहा, सार्वजनिक तौर पर नहीं करना उचित रहता, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि संतोष की बात यह है कि अब युवा स्वयं भी समझने लगे हैं और वो चाहते हैं कि भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के जो एक विकास यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आरंभ हुई है, उससे वो लाभ प्राप्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी देश के युवाओं का इसका लाभ प्राप्त हो और ये वंचित रह जाएं और कारवां गुजर जाए और ये गुबार देखते रहें। अब देखिए, उसमें मेरी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं। वो एक विषय है जो गृह मंत्रालय के संज्ञान में है। जो भी उसमें उचित आगे उसका व्यू लेना होगा वो करेंगे। निश्चय ही वो जो उचित होगा वो किया जाएगा। कांग्रेस आरोप लगाती है कि हमने कांग्रेस सरकार गिराई, लेकिन जहां जहां भी सरकार गिरती है वो खुद ही अपने आप अपनी सरकार गिरा देते हैं। सो कांग्रेस एक्चुअली इज फॉलिंग अंडर इट्स ओन वेट, एंड दैट इज वाई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन it is indulging in the kind of jargon which is unheard of in the history of democracy. और दूसरी बात यह कि जैसे आपने नाम लिया 3 नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, जिनका के पुल जी के सुसाइड नोट में उल्लेख आता है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न मुझे या संबित पात्रा को पूछने के बजाय कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को और राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने पार्टी स्तर पर इस विषय को लेकर के क्या कार्रवाई की है। और यदि ये कहा जा रहा है कि किसी नेता ने कोई बयान दिया है तो ये पार्टी का मत नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसका भी उत्तर कांग्रेस के नेतृत्व और राहुल जी को देना होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या मौकिफ है, क्या रुख है, क्या स्टैंड है इस सेना अध्यक्ष के बयान को लेकर के, जो उस पर प्रतिक्रिया उनके नेताओं के द्वारा हो रही है उसको लेकर के। मैं ये कह रहा था कि जहां जहां भी कांग्रेस ये पार्टी कहती है कि हमारी सरकार गिराई गई है, दर हकीकत होता ही है कि वो अपने ही वजन के नीचे दब गई होती है। अब हम विषय पे वापस आए। ठीक है, फिर आर्मी का विषय चला जाएगा ना। नहीं सर, आप बोलेंगे ना सर, आपको